टैलेंट बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है। इतना टैलेंट नहीं था मेरे अंदर। एक गन बनाऊंगा मैं, हैं जो 100 करोड़ की गन होगी, लोग देख के अरे कितनी कमाल की गन है और ठक 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 सबको मार दूंगा मैं। हमारे यहाँ देखने की कल्चर है, कितनी भी डब्बा फिल्म हो, हमें हर संडे, फ्राइडे और सैटरडे को जाना ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। कि मुझे मालूम है कि ये फिल्म अप टू द मार्क नहीं है, और की मैंने वो फिल्म, चाहे नसीर साहब हो, हमपुरी हो, इरफान भाई हो, मनोज वाजपेयी हो, सब अफेक्ट हुए। इन लोगों जो दुनिया बोलती है ग्रेट एक्टर हैं, बट इन लोगों को लेके कभी भी 25 करोड़ की या 30 करोड़ की कभी पिक्चर नहीं बनाई। You were bigger, you were bald, you were fat. I would still cast you as the Costa because I don't think the physical resemblance is anything in the film. It is the soul of the film. It's a very chauvinistic male club, or it is also people from the industry who they hang out with each other, they praise each other. There is no kind of support for anybody. Hi, I'm Sejal Shah. I'm the director of the film Costa, and you're watching Screen. And everybody obviously knows who he is, but let him introduce himself. I'm Nawazuddin Siddiqui and you're watching Screen. And he's not the director of the film, he's the I'm actor. not the director of the film, she is the director. Okay. I'm an actor in this movie called Costa. So first question, I think I should be asking you कि आपने फिल्म के लिए हाँ क्यों बोली पहले? हालांकि सवाल तो पहले होना चाहिए कि आपने मुझे क्यों कास्ट किया इस फिल्म के लिए। तो आई फील जब भी मेरे पास 5 years back when I got the idea for the film and मेरे को किसने बोला about Costa Fernandez, and because of my background as a journalist I was looking for some idea which is real but which is more complex and nuanced, and then जब भी मुझे idea आया, the first person I could think was you. I didn't even मैंने तभी आपको approach भी नहीं किया था, but in my mind I knew that if I wanted to do this film, मैंने एक line भी जब भी नहीं लिखा था, जब मुझे स्टोरी पता चली, I said it will be Nawazuddin only, and I was already working with you on Serious Men, which won you the Emmy nomination and the Best Film Award, and मुझे लगा कि और कोई नहीं कर पाएगा ये thing, and I said that if this film happens, it will only happen with Nawaz. So everybody kept on asking me, अगर नवाज नहीं तो कौन, if he says no, and at that point I said if Nawaz हाँ नहीं बोलेगा, this film cannot happen, because I couldn't see anybody in the role except you. And another thing, a lot of people अभी जब भी फिल्म का पोस्टर्स आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, ट्रेलर, सब लोग आके बोल रहे हैं कि आपने नवाज को इसलिए कास्ट किया बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल रिजेम्बलेंस. And I just want to say, means in the sense of physical resemblance, or maybe the way your physique is. But at that moment, that has never crossed my mind, because I know agar aap Costa, you didn't have, you were something, you were bigger, you were bald, you were fat, I would still cast you as the Costa, because I don't think the physical resemblance is anything in the film. It is the soul of the film. Absolutely. And the soul of the character, and I knew nobody else could do it except you. So I'm just happy, and I was really very excited because in my life, I wanted to always direct a film. That has been my main goal. Producing of course happened because I was trying to direct and I enjoyed producing, but direction mein mera goal tha, and when you said yes, for me it was a dream to work with an actor who is not only good but who I love. It is people don't I don't think directors know a director who's working with an actor they love. They don't, there's a completely different experience, because I really love you as an actor and I love you as a person. It was one of the best experiences of my life. तो आपने अभी क्यों हाँ बोला? मैंने एक्चुअली जैसे एज यू सेड कि हमने सीरियस मैन साथ में किया, मुझे एज ए डायरेक्टर तो नहीं पता था आपके बारे में, लेकिन एज अ राइटर भावेश के बारे में मुझे मालूम था कि वो इस तरह का राइटर है, उसकी डायलॉग राइटिंग इतनी खूबसूरत है. आई थिंक इंडस्ट्री में लाइक जैसे मैं अनुराग को एज अ राइटर समझता हूँ, तो भावेश नियर अबाउट ऐसा है, अनुराग कश्यप के कैडर का है, उसके अंदर वो सेंसिबिलिटी है भावेश के अंदर. बट एज ए डायरेक्टर मुझे नहीं आइडिया था. जब मुझे आपने कॉन्सेप्ट सुनाया, आपने तुक्का लगाया, हाँ, कि भावेश लिखेगा, ये डायरेक्टर कैसे है मालूम? हाँ, ये फ्रेंकली स्पीकिंग ये था कि ऑफ कोर्स चूंकि मैंने आपके साथ काम किया है, सीरियस मैन आपकी फिल्म थी, और उसने जो रिस्पेक्ट दी उस फिल्म ने, एमी नॉमिनेशन में मुझे नॉमिनेशन हुआ, तो मुझे ये तो मालूम था कि ऑफ कोर्स सेजल डायरेक्ट करने चाह रही हैं, बट इतना मुझे आइडिया नहीं था आपके बारे में. लेकिन जब सेट पे मुझे पता चला तो मैं कि वो डायरेक्टर की जो अच्छी खूबियाँ हैं वो सारी आपके अंदर थी एज ए डायरेक्टर, कि एक कंफर्ट्स
बनाना, एक अच्छा माहौल बनाना सेट पे, और इतना कैजुअल, इतना अच्छे से सबको डायरेक्ट किया आपने, वो देख के मुझे एक्चुअली डायरेक्शन वही होता है, बाकी तो टेक्निकल चीज़ें होती है एग्जैक्टली कि डायरेक्टर एक्टर से आप कितना अच्छा कैजुअली कितना अच्छा काम ले सकते हैं, उसको भी पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ प्रेशर आना शुरू होता है ना, वहाँ एक्टर शायद मुझे नहीं लगता है कि वो अपना 50% या 60% ही दे पाता है, लेकिन अगर 100% निकालना है किसी एक्टर से, तो उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, और उसमें उसमें आपने 100% जितने भी एक्टर्स ने, आई थिंक मेरे अलावा भी इतने अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, और उन्होंने उतना ही अच्छा काम किया। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो माहौल आपने बनाया और एक्टर के दिमाग में ज़रा सा भी प्रेशर नहीं फील होने दिया। वो एक खूबी शायद मैंने इतने सारे काम किए मैंने, बहुत कम डायरेक्टर में होती है। अगेन मैं अनुराग कश्यप का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि ये जो खूबी आपके अंदर है, ये अनुराग के अंदर भी है। अपने एक्टर्स को पलकों पे बैठाना, और उनको कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं थोड़ा बहुत ओके टेक करके आता था, नवाज़ ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो जो नेक्स्ट टेक होता था उसके ऊपर होता था, क्योंकि आपने वो मुझे कम्फर्ट्स दिया। ये थैंक यू। आप और कुछ बुरा तो बोल नहीं सकते कैमरा पे, नहीं, अगर बोलना है है तो बोलने के लिए है, मेरे पास हैं क्या, चीज़ें। जैसे कि लाइक एग्जांपल? जैसे कि मुझे ऐसा फील होता है एज एन एक्टर कि बैकग्राउंड स्कोर उसमें और वो हो सकता था For अपने the फिल्म film. में, फॉर द फिल्म। हाँ, बट एज यू सेड कि भाई हम वो अपने अपने विचार होते हैं, मेरा थॉट अलग है, आपका थॉट अलग है। यही तो नहीं है कि भाई हर चीज़ पे हम सारे दोनों एग्री हों, बट इट्स ओके, गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा काफ़ी दिमाग चलता है बैकग्राउंड स्कोर में। तो बैकग्राउंड स्कोर पे ऊपर हाँ, एक्चुअली आई वाज वेरी वो मैं श्योर, पूछना चाह भी हाँ, रहा सो था आई मैं। वाज वेरी श्योर केतन सोडा हु इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट कंपोजर्स हु हैज डन इट। एंड मेरा ब्रीफ बिगनिंग से ही ऐसा था कि आई डिडंट वांट इट टू बिकम मेक इट अ मच मोर यू नो, आई फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर इन फिल्म्स समटाइम्स इज वेरी लाउड। मेरे को आई डिडंट वांट इट टू बी लाउड, and why I find it sometimes it is needed to be loud is to support the cast and to support the emotions and what you're not performing. तो क्या होती है ना, बैकग्राउंड स्कोर becomes like a crutch कि अगर ये सीन नहीं वर्क कर रहा है और बैकग्राउंड और म्यूजिक वो डालो, तो खैर ये क्या कर रहा है। मेरा भी So बिलीफ नहीं उस yeah, चीज़ पे so तो। for me I wanted that to be subtle. I wanted that the background score, हाँ, and I felt that in fact जब भी मैंने when I started editing the film and I started putting the BGM, एक्चुअली मैंने बहुत सारा बीजीएम निकाला बिकॉज आई वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट यू वर होल्डिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब यू नो व्हेन पीपल विल वॉच द फिल्म, द ग्रेव का सीन जो है वहाँ बिगनिंग में बहुत सारा म्यूजिक था, मैंने निकाल दिया। आई सेड बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड, बिकॉज माई एक्टर इज परफॉर्मिंग सो वेल दैट आई एम अफ्रेड टू आई एम कंफर्टेबल टू बी इन साइलेंस। तो मुझे लगा कि दैट वाज द होल आइडिया ऑफ डूइंग इट, एंड आई वांटेड द म्यूजिक टू बी अ लिटिल मोर डिफरेंट इन दैट बिकॉज वी यूज्ड टू हियरिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ साउंड. So that was my intention when I did of that. course, of But course. yeah, so for me, it has really worked. I really, in fact, I feel the BGM for me has been one of my biggest things in this film. So हाँ, it's स्पेशली okay. बहुत अच्छा है बाकी का, बट स्पेशली जहाँ पे फाइनल जो वर्डिक्ट आता है Yeah. कोस्ताव का, और उसके बाद वो चर्च पे सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, वो वहाँ से जो है ना, और वो रोड पे आते हुए दिखाया उसको, वो वहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा और Yeah. So exactly. होना So चाहिए। I didn't. That was a choice. That was my choice. You know, Okay. it was a creative choice, is because I can see the triumph. Uska he won in the end after so many years. There's a feeling of triumph in him. But मुझे क्या लगा कि वो क्या है ना, अगर मैं वो bombastic music डालती ना, because ultimately of course he won, but it is not a victory it is not a stereotype victory because he has lost so much in that. तो and वो कॉस्टाव का जो कैरेक्टर और आपने जो प्ले किया है, इट हैज बीन वॉज वेरी सटल। आपने फोन कॉल भी लिया ऐसे, आपने फोन कॉल लेने के बाद जब भी आपको पता चलता है दैट यू वन, यू डिडंट जंप, यू डिडंट स्टार्ट स्क्रीमिंग शाउटिंग। सो आई हैड टू प्ले द म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द इमोशन यू गेव, और आपने भी इतना सटल किया, यू जस्ट लुक्ड, यू जस्ट नॉडेड, केप्ट द फोन एंड यू केप्ट वॉकिंग. So I felt that if at that moment I would have given a music which is like, you know, much more bigger, bombastic and all, I don't think it would work because I wanted to support the emotion जो आपने already किया था. So that was a choice. I mean, Yeah, we yeah, made of course, after, of and a lot of choices of the music and everything else was made after we saw the performance editing. हम लोग ने तो बहुत काम किया था editing पे to see to it that वो narrative भी fast लगे, but I didn't want to be afraid of, like जैसे कि जो husband wife का जो scene है, which is like one of my favorite scenes in the film. जब भी when you and your wife have a big fight, it is raw.
you know हम लोग ने का म्यूजिक नहीं डाला है, I just kept it between two emotions. हाँ, So of that course, was वो तो बहुत वो शूट करने के लिए तो अपने को we had a lot of fun, but it was very, I think when we were shooting that scene जो husband wife का fight था, I remember everybody on the set, it was all quiet and everybody started thinking because कहीं ना कहीं हम लोग सब में we have seen our parents go through that, हम लोग के खुद के relationship में, बिल्कुल। and everybody could relate to that. So I remember जब भी मैंने ये फिल्म ये जो सीन शूट किया था, you know, we were all this and you carried on that scene for a long time, you know, and then Yeah. it was beyond the script. I think you were very natural, आप घुस गए थे पूरा वो इमोशन में तभी जब भी फाइट का हुआ था। आप बट मुझे लगता है सजल वही ना कि हमेशा ना हम बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं जो फिल्मों में लाने से उनको, जैसे ऑड सिचुएशन होती है जो रियल लाइफ में बहुत टाइम होती है, हर बार होती है किसी के सामने जब हम मिलते हैं और कुछ ऐसी बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़की खड़े हैं तो पहले क्या बात करें, किस तरह की, अच्छा यार आज वेदर बहुत ख़राब है यार, हाँ बहुत गर्मी है, लेकिन बात कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो वो जो ऑडनेस होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब वो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए जब ऑड सिचुएशन होती है, जो हम अक्सर फिल्मों में नहीं करते। Like there is one in you said is odd situation. This is one part of the film which was ordered in the script. जब भी you and your wife are shifting furniture and आपका बहस हो रहा था, तभी आपने कुछ डायलॉग बोला और बोला कि मैं अगली बार नहीं करूँगा। तो she turned around and said अगली बार means क्या? और आपने बोला next time. And that was your own thing, you know, next time. Next and it time. was part of the thing, and she continued doing that. That was also very unique and it was very casual and बहुत अच्छा था, impromptu था। वो आपको क्या लगता है कि do you feel that biopic sometimes right now because बहुत बन रही है, is it a overused और abused और सबको कभी डर लगता है, बोरिंग हो जाता है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है बायोपिक्स के बारे में? आई थिंक बायोपिक का जो है वो बहुत रिस्की है हमारे यहाँ स्पेशली, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक गुडीनेस के लिए बनाते हैं कि किसी जिसकी भी बायोपिक है उसको खुश करने के लिए बनाते हैं और उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं दिखाते। ये एक बहुत बड़ी मेरे को वो लगती है। और दूसरा, बायोपिक के लिए बहुत कम एक्टर हैं जो अभी रेडी हैं। आई थिंक उसके लिए बहुत ही अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए बायोपिक के लिए। हम लोगों की प्रॉब्लम होती है या तो हम कॉपी कर देते हैं, कैरिकेचरिस्ट कर देते हैं उसका है, या फिर उसका कुछ और कर देते हैं। लाइक अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल गांधी बहुत लोगों ने किया, लेकिन जब बेन किंग्सले ने किया था तो वो मुझे बहुत ही उस तरह की जो है ना करेक्ट चीज़, या जैसे उसमें क्या नाम था उस फिल्म का, लिंकन। हाँ, लिंकन। डैनियल डे लुइस ने किया था वो लिंकन का। तो परफेक्ट पोस्चर, द वे ही टॉक्स, तो वो उस तरह का जो हमारे यहाँ पे आई थिंक बहुत ही कम बायोपिक हैं। मतलब नसीर साहब ने किया था मिर्ज़ा गालिब में, हालांकि हमने मिर्ज़ा गालिब को देखा नहीं है, बट हमें एक बिलीफ होने लगा था वो, और एक्टिंग इज एक बिलीफ एक्चुअली। तो उसमें लगने लगा था हमें मिर्ज़ा गालिब ही है ये गालिब साहब ही है, नसीर साहब। हमारे यहाँ बहुत ही बेढंगापन है बायोपिक बनाने का, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हम लोग ना बहुत कॉपी करते हैं। हम उसका सोल, जो कैरेक्टर की जो सोल, क्या ज़रूरी नहीं कि मुझे वैसा दिखना हो। आप, ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो मेकअप आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन है कि अगर मैं ठाकरे कर रहा हूँ या बाला साहब ठाकरे कर रहा हूँ, या मैं अपना कैरेक्टर कर रहा हूँ कोस्ताव का, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये तो मेकअप आर्टिस्ट का और कॉस्ट्यूम का कमाल है। मेरा कंट्रीब्यूशन तो है नहीं उसमें। मेरा कंट्रीब्यूशन है कि कोस्ताव की जो एब्सोल्यूटी है, कोस्ताव का जो थॉट है, कोस्ताव किन चीज़ों पे उसको गुस्सा आता है, कोस्ताव किन चीज़ों पे ठंडा बैठता है, वो चीज़ें पकड़ना। तो ये एक रिस्क फैक्टर है हमारे यहाँ बायोपिक का। और दूसरा, बायोपिक में हमेशा होता है कि एक्टर का डेप्थ पता चल जाता है कि ये ऊपर ही सतह पे खेल रहा है या अंदर जाके खेल रहा है। अब अगर सोल को पकड़ के आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहरी तौर से भी वैसे ही दिखाई दें। अब मेरे लिए, जैसे आपने कहा कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि मैं कोस्ताव जैसा दिखाई दूँ। आपको ठीक है, बहुत सारी रिजेम्बलेंस है, हो सकती है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे पूरी तरह से कोस्ताव बनाया जाए, वही मुझे, वही बाल और वही करके। नहीं, कोस्ताव की जैसे मैंने एक वो देखी कि एब्सर्डिटी है, एक अजीब सी, एक पागलपन है उनके हंसने में भी। वो कहाँ से आता है? वो उसी जगह से आता है जहाँ पे उसने अपनी लाइफ में जो सफरिंग थी उसकी लाइफ में, कि क्योंकि मजाक भी अपने आप पे वही कर सकता है जिसको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो।
कॉमेडी भी वही कर सकता है अपने ऊपर। तो हमने ऑफ कोर्स आपने और हमने पूरी यूनिट ने और इवन भावेश ने भी इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो कैरिकेचरिस्ट ना हो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब हम लोग फिल्म देख रहे थे, कस्टम ऑफिसर्स के साथ देख रहे थे फिल्म, तो जितने ऑफिसर्स बैठे थे जो कोस्ताव के बहुत करीबी दोस्त थे, तो वो बोले थे यार कोस्ताव बिल्कुल इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल कोस्ताव लग रहे थे, या कोस्ताव की तरह बात कर रहे थे आप, कोस्ताव की तरह हंस रहे थे आप। तो आई थिंक ये बड़ा फैक्टर है बायोपिक का कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो रहता है उसमें। एक्टर जब तक ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड एक्टर नहीं है, नहीं कर सकते आप बायोपिक। आई एम सॉरी। दूसरी एक्टिंग कर लेंगे आप कॉमेडी कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, बहुत सारी चीजें कर लेंगे, बायोपिक नहीं कर सकते until unless if you are not a trained actor. I agree. And also I remember that जब भी हम लोग ने when we started discussing the film, both of us had said, you had also told me that हम लोग caricature तो बनाएंगे नहीं. That was one. And secondly, I remember मैंने in the beginning, because I am quite an OCD, मैंने आपको रोज फोन करके बोला आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. And that time I remember one conversation where you said that यार सेजल वो ट्रेनिंग तो मैं कर लूँगा. It is not there. It is you. That is the time you told me I will do. Of course, I'm going to do the running, training, and all that. But what you're not understanding is what I need to do is get into the character, because people have to see my eyes. तभी आपने बोला था, and because I was so obsessed ना, वो आपने किया भी. But क्या होता है ना, as a director, I was first time I was very obsessed कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा. And that time you said no, it's not important. Of course, I'm going to do that. वो तो कोई भी कर लेगा, कोई भी एक्टर कर लेगा. But जो मुझे परफॉर्मेंस और मुझे वो करना है, that was one thing I want to say. And secondly, I want to say, and biopics का क्या problem है, no, is that I feel that a lot of times, no, people are whitewashing, okay, because they are afraid, because you have taken rights of somebody. And of course you have to honor that person, उसको sensitivity से दिखाना है. But the point is that what I feel is कोस्टाव का क्या था ना, मुझे what attracted me was that the idea was not to whitewash. This was not a film about कोस्टाव को महात्मा गांधी बनाना. It was to show he's an ordinary person and flawed hero. Yes, flawed hero. Which we all don't want to see, that there is a flawed hero. And जब भी in the history I have seen and in our personal lives, that whenever there somebody is a hero, there's always victims. कोलैटरल डैमेज होता है. ऐसा नहीं कि जब भी हीरो विक्ट्री करता है तो बट उसके आजू बाजू के लोग, his family members and all, they all have suffered. And this is what the film is about, कि people suffered because he's a very complex and protagonist. He's a morally complex. He has got a very strong inner moral complex. But there are collateral damage what happens to his family and how he treats that. So I think that was the whole idea. And मुझे तभी जब भी हम लोग फिल्म बना रहे थे, that was one thing I had told Costa. जब it took me almost 2 years to convince him कि जब भी हम फिल्म बनाएंगे, we will show certain parts you might not be happy, you might not agree to. Correct. And he agreed. That is a very big thing, and that is why जब भी हम लोग ने जब भी फिल्म दिख रहे थे, we spent so much time with him. And after the film was made, the first person which I was always wanted to please in this entire film was Costa. There was only one person, and जब भी उन्होंने फिल्म देखी ना, that time I was relieved that that is why I'm not even worried, anxious about the film जो जैसे होना चाहिए, because one person who knows what is story, and we have not been completely like trying to hide certain things and all. उनको पसंद आई, which is a very big thing. And I find biopics में क्या करते हैं, beginning to end का वो जो childhood का रहता है ना, which has nothing to do with the story. It is here the whole idea that it is just one incident, and that one incident changes the life of not only the person but everybody around him. Correct. जैसे कि अपनी फिल्म में है, उनकी फैमिली को अफेक्ट होता है, उसको अफेक्ट होता है. But what people don't realize, victim की फैमिली, जिसको even if that guy is a smuggler, okay, if somebody is a evil person, but there is a damage that happens to his family also. So there are victims everywhere, and that is what the film is about, and that it is not easy to be a hero. हम लोग सबको लगता है it's not easy. That was the whole process. So I feel that is why people are very scared of biopics आजकल, जो of course trend हो रहा है. But I feel that अगर you have to be very sensitive but nuanced, and also make sure that you are telling the truth, you're telling the story. तो ये अच्छा, another thing I want to tell you, that thing in this film was, बहुत सारे जो incident actually कोस्टा के life में हुए थे, हम लोग ने some of them we removed because we thought that people will think कि ये हुआ ही नहीं है. normally film में क्या होता है कि fiction what नहीं है तो हम लोग dramatize करते हैं, fiction करते हैं. तो in fact in this film it was the opposite, because it was so extraordinary. Like this is like they say the example definitive truth of what if the
रियलिटी इज मोर एक्स्ट्रॉर्डनरी देन फिक्शन. तो एक जैसे कि जो सीन है बाइक पे आप जा रहे हैं, जंप किया, वो रियली हुआ था. अभी जब ही लिख रहे थे, भावेश ने मुझे बोला, हम लोग बोले कि यार ऐसे करेंगे तो सबको बोलेगा फिल्मी है, फिल्मी हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और मगर ये हुआ था. जैसे कि एक दो देयर आर स्पेसिफिकली 2-3 इंसिडेंट्स दैट हैव रियली हैपेंड, बट वी हैड टेकन अ कॉल टू रिमूव बिकॉज इट वाज सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि आपको अब किसको लगेगा कि ये नहीं हुआ. सो आई थिंक दोस आर द चॉइसेस वी हैड मेड. You know, this film talks about integrity, okay, and that is what integrity, honesty, duty, sense of justice and all, power. When I was doing this film, मेरे को एक thought आया था कि I want to make this film with creative integrity. That was my thing, that because this film is about that, I wanted to do it with creative integrity, and specifically because Costa ऐसा था, he demands that of me also. He's very strict about तुम कुछ किसी बारे में बात करो, but there should be integrity and values in that. आपको क्या लगता है कि when you as an actor, because sometimes do you have to compromise in your integrity, or what do you feel in the industry overall? Is there some kind of honesty, integrity in the industry or in films or in your own life? इसी इंडस्ट्री के बारे में तो, बट मेरा खुद का जैसे कुस्ताव के अंदर जब हम लोग परसों बात कर रहे थे कुस्ताव के साथ, तो कुछ चीज़ें उनकी ऐसी सुनी मैंने कि जो मैं अपने लाइफ में भी मैंने अप्लाई. मैं बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी था अपनी. इतना टैलेंट मुझे नहीं लगता है, वो टैलेंट बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है. इतना टैलेंट नहीं था मेरे अंदर कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ थी नहीं. बट हाँ, ये था कि कभी कभी टैलेंट से ऊपर ना जो आपका पैशन होता है वो ओवर पार कर जाता है. क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर मैंने देखे हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं था अपनी लाइफ में, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गए. और जो टैलेंट होता है वो बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, कोई कांस्टेंट नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता है टैलेंट. कि आज है आपके पास टैलेंट, अगर आप टैलेंटेड हो और आप सर्किल में ऐसे बकवास लोगों के सर्किल में रहने लोगो, तो आपका टैलेंट बिल्कुल ऐसे डाउन हो जाता है. लेकिन एक पैशनेट आदमी अपने पैशन से धीरे धीरे अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छा सर्किल बनाना, अपने चारों तरफ अच्छी फिल्में देखना, अगर ये रखते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप उस टैलेंटेड एक्टर से बहुत आगे निकल जाते हो. तो कोस्ताव के अंदर ना एक ही चीज़ मैंने देखी कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और ये वो सारी वो जो आज भी उनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है, इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी थी. तो जिसकी वजह से आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि मेरे जैसी पर्सनालिटी का आदमी इंडस्ट्री में आप सोच ही नहीं सकते कि इस तरह के लोग भी इंडस्ट्री में आते होंगे. क्योंकि जब मैं आया, हमारे जैसे एक्टर नहीं दिखाई देते थे. हम हमेशा मैचो ये वो सब उनके बीच में हम लोग आए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उस वक्त पे उठानी पड़ी. और लेकिन वही सिर्फ एक कंसिस्टेंस की वजह से कि एजुकेटेड एक्टर हैं हम लोग और पैशनेट भी हैं. लेट्स सी देखते हैं क्या होता है. तो ऐसे करते करते चीज़ें मिली, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल था. तो ये जो चीज़ें हैं ना जो कोस्ताव के अंदर है, वो कहीं ना कहीं जब कोस्ताव बात करते तो मुझे लगता है कि यार ये मेरी बात कर रहा है, क्योंकि हर उस इंसान की बात कर रहा है कोस्ताव. आप ऐसे एक्टर हो ना, I was telling somebody, Nawaz, how was it working with Nawaz? I said, Nawaz is an actor, no, you ask him to jump, he will ask how high. वो कभी नहीं, he completely surrenders and he elevates the script. So that was, for me, it was amazing, and that is what I'm saying about discipline, professionalism and integrity. और you are very honest also. Sometimes एक दो बार जब भी हम लोग सीन का डिस्कशन कर रहा है, you will say that सेजल, I feel that मुझे ये ऐड करना चाहिए, मुझे ये ऐड करना चाहिए. हम लोग भावेश को बुलाते थे, can we add this? And at certain point भावेश ने बोला मैं नहीं change कर सकता हूँ because I've seen there's a flow. You would agree to that, and if we agree, so that was the kind of a relationship. क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में देख रहा हूँ, आप तो मतलब पूरा फिल्म के बारे में देख रहे हैं, पूरी स्क्रिप्ट आपको पता है. And the other thing I felt what was enjoyable was also the way you support other actors. See, I have interacted with other actors. I've seen how people work. Is that सब लोग पहले अपना देखते हैं. Secondly, what I find it amazing is that some of the actors, they don't like others shining around them. वो लोग को लगता है यार इसका तो रोल मेरे से ज़्यादा है, उसको बेस्ट डायलॉग दिया है, उसको ये. I remember every time I used to talk to you about, be it Kishore, be it Priya Bapat, be it Hussain Dalal, that asked me, everybody who were fantastic actors in the film, you were so excited. मैंने बोला क्या सीन किया उन्होंने, हाँ वो इसका क्या सीन था, वो क्या सीन, because you made sure कि सेजल everybody should be good because it's a group and everybody was feeding off.
सो जो अदर एक्टर्स थे फिल्म में, आई सॉ ऑल ऑफ देम ट्रांसफॉर्म विथ यू. तो मैंने इसीलिए जब भी वी स्टार्टेड शूटिंग, आई सेड फर्स्ट सीन नवाज के साथ करते हैं बिकॉज ही सेट्स द टोन. एक बार भी एवरीबडी, ऑल द अटैक एक्टर्स अराउंड रियलाइज कि दिस गाय is very what do you say, generous as an actor. You are a generous actor कि सबको let's all take together. Okay, you want to rehearse, I will rehearse with you. ऐसा नहीं कि नहीं उठ के चलो तुम कैमरा के सामने करो, and then you are giving the best rehearsals to everybody else and you are shining. The entire film is working. So that I thought was very amazing working with you. तो वो बहुत, which is very rare, I find in actors. So हम लोग, you know, you तो have much more experience than me in this industry, but I feel that there are two things when we are working in the industry that sometimes, you know, as a producer, director, I'm talking about myself, ये कभी हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. बोलते हैं कि चलो ये फिल्म कर लेते हैं, ये एक्टर के साथ कर लेते हैं, ये which I can say proudly that we have not done it so far, and which is very difficult because I feel that ये, you know, to continue on that also, one thing I want to say in this industry का problem क्या है, no, everybody thinks that this is an industry, but they don't function like one. You know, like there is, I have seen biggest actors, वो जो आते हैं, you are getting paid for it. It's like going to a job. Okay, I'm getting a salary for it, but you come and then they don't want to learn the lines. They don't want to stay they don't come on time. They want to leave. So I feel that is a big problem. And for me, I cannot succumb to that. I feel I'm talking about my integrity, and I've said no to a lot of people because one thing I cannot tolerate is somebody being unprofessional and bullying. You know, basically it is a bullying because you are a big star. You expect people to come around you on time, but you don't want to arrive on time. You don't want to learn your dialogue. अगर आप कोई और इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में जाएंगे तो इट विल नॉट बी टॉलरेटेड. Of course. I am paying you, Nawazuddin, Yes, as an actor, and I'm absolutely. telling you, I'm paying you. If I'm telling you to come at 9 o'clock, please come on the set. Of course. If I'm making you sit on the day, it is your job. You should be treated. You learn Yes. your lines and come. Anywhere else, you would have been sacked from your job. अगर आप आते हो and you don't learn the line. So I feel that has been my process, you know, in this industry, and I want to stay away and I want to work only with people who I enjoy working with. So आपको लगता है because you have so many years of experience as an actor that sometimes, you know, you do compromise here and there, or sometimes In what sense, like compromising? like suppose you say, you know, sometimes what happens is you're doing a film. Sometimes, you know, that you say, okay, you know, I know, okay, this is a different kind of film. That sometimes you do for money, which I would also do. Sometimes you do for that. And secondly, also there might be times आपको ऐसा लगता होगा आपने एक film चालू की है and somewhere midway, you know, it's not working and stuff like that. So how do you deal with that? बहुत बार हुआ है. कई बार मैंने खुद जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कि मुझे मालूम है कि ये फिल्म अप टू द मार्क नहीं है और की मैंने वो फिल्म, ये फिल्म ऐसी है, वो फिल्म वो तो है. और दूसरा बहुत सारी चीज़ें लाइक इसलिए भी की जाती हैं कि भाई कि शायद ये मास की फिल्म है इसलिए करनी पड़ेगी. वो तो बैलेंस होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है एक्टर. लेकिन जैसे एज यू सेड ना कि इंडस्ट्री एक कमर्शियल पे आधारित होती है, यू नो, और उस कमर्शियल में जब ना कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें होती हैं कि वो फला एक्टर या फला सर्टन जगह का आया हुआ एक्टर वो इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन उसको भी स्टार बनाया जाता है. उसको काट के पीट के उसको खड़ा करके कैसे भी तैसे करके उसको स्टार बनाया जाता है. ये एक्चुअली सिर्फ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में होता है. बाहर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रोफेशनल एक्टर्स उनको चाहिए, ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल एक्टर्स. वहाँ पे बिना ट्रेनिंग के एक्टर को घुसने नहीं देते. कि जितने भी ग्रेट एक्टर्स आज की डेट में हैं, अगर आप हॉलीवुड में लें तो सारे ट्रेंड एक्टर हैं. सब थिएटर वेटर करके और पूरा अपना लाइक जब आते हैं तो लाइंस को याद करके आते हैं. और आप अगर कॉल टाइम 9 बजे का तो एग्जैक्ट 9 बजे वहाँ पे आपके सामने हैं वो. तो ये प्रोफेशनल उनके यहाँ है. हमारे यहाँ एक्टर्स में भी और इंडस्ट्री में भी ये चीज़ की बहुत कमी इसलिए है क्योंकि क्या कहना चाहिए कि उनको एक फ्रेटर्निटी है, यू नो, एक परिवारवाद है इसमें. फैक्ट है बात कि लाइक जैसे हम अक्सर जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि 2 तरह के एक्टर होते हैं. एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है, एक पब्लिक का एक्टर होता है. लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ है जिसको पब्लिक देखना चाहती है उसकी फिल्में पब्लिक तक नहीं पहुँचती. जिसको पब्लिक नहीं देखना चाहती उसकी पिक्चर उन सब के घर के आगे लगी हुई है. और हमारे यहाँ देखने की कल्चर है. कितनी भी डब्बा फिल्म हो, हमें हर संडे, फ्राइडे और सैटरडे को जाना ही होता है. और धीरे धीरे हम एक
जो डिजर्व नहीं करता इस एक्टर, उसको देखने, उसकी गंदी एक्टिंग देखने की ऐसी आदत पड़ जाती है, और बाय द टाइम हम उसको कंपेयर करने लगे, नहीं यार अब अच्छा करने लगा ये 15 फिल्मों के बाद जब हम कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, उन 15 पिक्चरों में अगर आप डिजर्विंग एक्टर को लेते तो कहाँ से कहाँ चला जाता वो कैरेक्टर जो भी किया जाता है। तो एक ये इस तरह की चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में इतने ग्रेट एक्टर्स हैं जो बाहर से आते हैं, थिएटर करके आते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, क्योंकि सीरियस हैं उस प्रोफेशन को लेके ना, वो इसलिए है ना, इसने 3-3 4-4 साल की ट्रेनिंग लेके आते हैं, बहुत सारा थिएटर करके आते हैं। आप ये देखिए उनको, हम इंडस्ट्री में आके सपोर्टिंग एक्टर में डाल देते हैं, बट दे आर ग्रेट एक्टर, यू नो। तो उस तरह की चीज़ों को लेके मुझे अक्सर गुस्सा आता है, क्योंकि और आप एक आदमी को इजीली आपने उसको दे दिया क्योंकि उसके आसपास के लोग इंडस्ट्री में, इसलिए। तो ये एक, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी एक मीडियोकर एक्टर की पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो जाती है, वो क्या कैरेक्टर किया था यार उसमें उसने, नहीं यार, अगर उसको उसी रोल को आप किसी ग्रेट एक्टर को देते, अच्छा एक्टर को देते, उसमें और भी पॉसिबिलिटीज थी, और कहाँ से कहाँ चला जाता वो कैरेक्टर। तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। एंड स्पेशली आपने जो बोला, व्हाट हैपेंस इज इफ अ न्यू एक्टर कम्स, ओके, हु इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो लोग को बोलते हैं यार पहला फिल्म है, दूसरा फिल्म है, तीसरा, बट पीपल डोंट रियलाइज इन दैट 10 फिल्म्स, यू नो हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज पीपल लाइक अस who are producers and directors like us who are not in a completely mainstream industry से नहीं आए हैं, जब भी फिल्म्स नहीं चलती है, बजट्स नहीं होते हैं, फिल्म्स डोंट वर्क, वी आर द फर्स्ट वंस, बिकॉज पैसा इधर कटता है, इट्स नॉट देयर, बिकॉज देयर दे स्टिल वांट टू पे द स्टार्स द सेम मनी. Of course. So what happens, the money gets, then people keep complaining industry में it's going through a downfall, going because your money is going wasted somewhere else. That is my big problem आप there. देखिए, अब आप ये देखिए, जो कमर्शियल, जो जिनको बोलते हैं कमर्शियल मूवी हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्लॉप वही होती हैं। Correct. एक साल में अगर 1000 फिल्में बनती है तो हमें सिर्फ 3 या 4 फिल्में याद रह जाती हैं, बाकी उनमें जो पैसा लगाया, करोड़ों खरबों रुपया लगाया गया बाकी फिल्मों में, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। That is my problem, accountability, because सब लोग बोलते हैं, you know, the film industry keeps talking about that we are an industry. So I am saying, where is the accountability? Because if you are Yes. in any other sector, there is an accountability. I am the CEO of the film. You are all, you are my GM. There are actors. If it doesn't perform, either I resign. You also have to take accountability because you are Absolutely. taking so much of money from there. You are taking most of the budget. I'm not talking about you. I'm talking the big stars. आप सबसे ज़्यादा पैसा वो लेते हैं, डायरेक्टर सबसे ज़्यादा वो पैसा लेते हैं, and there is no accountability of that. That is my one problem. Secondly, आपने जो बोला कि good actors, I remember when I worked with you in Serious Men, और जब ये भी फिल्म किया, anybody I spoke to, when I said that I'm doing a film with Nawaz, there is an automatic respect, not from you, for me also, that अरे आप नवाज के साथ काम कर रहे हैं, नवाज के साथ काम कर रहे हैं. Now my thing is that everywhere in the country, people are saying Nawaz is a fantastic actor, Nawaz is a great actor, Nawaz is this. But it seems like almost there are these people जो कहते हैं दरबान खड़े रहते हैं वहाँ, वो अलाउ करेंगे कि किसको इधर ये साइड आना है, किसको वो साइड नहीं आना है. So what is the point? And जब भी मैं आप ये कॉस्टा कर रहे थे, we were casting for certain roles. I remember I was working a lot in South that time, you know, trying to do a film. So a lot of people from Malayalam, Tamil, Telugu, I used to meet them. And when I told them I'm doing a film, I'm talking about big actors, big stars. उन्होंने बोला कि मुझे नवाज के साथ फोटो करना है, मुझे नवाज के साथ काम करना है. There was one actor who was specifically was going to do a film because of you, her dates didn't work out. So then I asked all of them, and I'm talking about actors like Nimisha Sajai and Bhavna, and these are fantastic actors. मैंने बोला कि what is his obsession in the South with Nawaz? So one person told me something very interesting. You know, Sejal, why? Because in the South we respect talent. Because, you know, and that is what I'm saying, that so many people in this film have acted like a Gagan. Gagan is like, was doing like playing a lead in the series. And, you know, I told him with Nawaz and he just did it because there are a lot of people who are hungry for working with good actors. और फिर आप नवाज को इतना कर रहे हैं कि he's the greatest actor, नवाज, वो मनोज हो, there are 2-3 other actors, and then there are still these people who stand there and decide कि अच्छा इसकी फिल्म इतनी बजट होनी चाहिए, इसकी फिल्म थिएटर में जाएगी, इसकी फिल्म उतनी जाएगी. And I have we interacting with these people. और who इससे decide हमें that. अफेक्ट नहीं हुए सेजल, इससे चाहे नसी साहब हो, हमपुरी हो, इरफान भाई हो, मनोज वाजपेयी हो, सब अफेक्ट हुए. इन लोगों जो दुनिया बोलती है ग्रेट एक्टर हैं, बट इन लोगों को लेके कभी भी 25 करोड़ की या 30 करोड़ की कभी पिक्चर नहीं बनाई. एक नौसखिया सा जो एक उन्हीं जगहों से आते हैं जिनसे उनको बेचारों को अभी तो बात करने की तमीज़ आनी चाहिए, उनको लेके जब आप फिल्म बनाते हैं ना, तो उन एक्टर्स पे मुझे बड़ा वो होता है,
उनको सपोर्ट करने का मन करता है, जो कई कई साल ट्रेनिंग में निकालते हैं अपने, यू नो, और वो डिजर्व करते हैं वो एक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी फिल्म में चाहे देखो, चाहे गगन हो, चाहे प्रिया बापट हो, चाहे और भी मेरी दूसरी फिल्मों में हमने जैसे जिन एक्टर्स के साथ काम किया, जो सपोर्टिंग एक्टर करते हैं, वो बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं, लेकिन आई एम सॉरी उनको लेके कभी कोई इतने बड़े बजट की या फिल्में बनाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। Yeah. In this film, one of the main things is about the relationship between Kostov and the informer. Actually, ये film में ना there are 2-3 very important relationships. One is between father and daughter, one is between husband and wife, and then one is between Kostov and the informer. वो तो बहुत ही beautiful relationship है. In fact, I remember जब भी हमें गोवा गई थी research करने को, I was spending some time with Kostov. तभी हम लोग एक beach पे गए थे, where he was showing me the real incident beach जिधर हुआ था. Then वो चले गए and then he said I'm coming in half an hour 45 minutes and then he disappeared. Then किधर छुप के गए. Then he came back and I asked him आप किधर गए थे? So he said I went to meet that informer. And he's still today, Kostov ने कभी life में he has never told anybody what he looks like, who he is or what is the informer. So I think these are the very basically it's loyalty and all in the relationships हम लोग के life में भी होती है. So do you feel that there is any kind of such supportiveness, loyalty or something in life, in the industry में especially होते हैं, आपको लगता है? आई थिंक जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू हूँ इन्फॉर्मर से, इन्फॉर्मर का नाम वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर नाम ले दिया इन्फॉर्मर का उन्होंने, तो आगे के जो डिजास्टर होने वाले हैं या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कोई देगा नहीं, क्योंकि उसका नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि आपने नाम रिवील कर दिया। और उनके एथिक्स में नहीं आता ये, यू नो, उनके जैसे कोस्टाव परसों बता भी रहे थे कि मैं क्या मतलब बहुत लोग जो इन्फॉर्मर का नाम लेते ही नहीं है, क्योंकि वो आपके करियर पे, आपकी ऑनेस्टी पे एक बहुत बड़ा वो है, वो धब्बा है कि अगर आपने इन्फॉर्मर का नाम ले दिया, इट मीन्स कि आपने अगर इन्फॉर्मर का नाम ले दिया तो आपके पास पैसे तो बहुत सारे आ जाएंगे, देने वाले बहुत हैं, वो दे देंगे, लेकिन आपका जो करियर टेक ऑफ होने वाला था वो कभी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इट मीन्स कि आप अगर और इन्फॉर्मर का नाम नहीं ले रहे तो ये इट मीन्स you want to earn respect. Yeah. But do you feel that ऐसा this kind of loyalty, the kind of support, have you found that in the हमारी industry? इंडस्ट्री में नहीं है, आई एम सॉरी, हमारी इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप नहीं होती है बिल्कुल भी। वक्त के साथ साथ जो है आज कोई और है, फिर वो बदल जाते हैं, फिर कोई और हो जाता है, फिर कोई हो जाता है। इवन आज भी अगर चाहे आप हो या मैं हूँ, हमारे जो दोस्ती है वो बहुत पहले के लोगों से ही है, जो आपको इसलिए नहीं लाइक करते कि आज आप सेजल हो, वो पहले से आपको लाइक करते हैं, कुछ क्वालिटी उनको आपकी पसंद आती है, आपको उनकी आती है। मेरे भी जो दोस्त हैं वो बहुत पहले के दोस्त हैं यहाँ पे, क्योंकि हर आदमी एक इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा, तो इसलिए कोई दोस्ती जो है ना, फ्रेंडशिप या लॉयल्टी या किसी चीज को लेके वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं एक्चुअली। And I also found one thing which was very, because I know I'm also now I come as a journalist, documentary filmmaker who accidentally came into producing and directing. मुझे एक what I realized one thing is that there is a kind of club, you know, that if you, not that I want to be a part of it, I'm saying that, but there is a certain kind of thing that, you know, to have access to that club, no. And I find that it's a very chauvinistic male club, or it is also people from the industry who they hang out with each other, they praise each other. There is no kind of support for anybody else. And I'm saying this from a lot of people who claim to be torchbearers of the industry and all that. But ultimately, end में क्या होता है, no? And that is my big problem, that there is no support in that sense. And secondly, I feel that the industry is not together. I am saying that कल उठ के आपको सबको मालूम है, there is, you know, there's a time to reduce actor fees, there's reduce the entourage, there's reduce, everybody keeps talking about it privately. But if everybody doesn't come together and say, okay, let us discuss that why it's the budgets that are failing, correct? Because most of your money is going to where it should not be going. But it's no, because मैंने आपको कल बोल दिया कि मैं नवाज को इतना नहीं दूंगी, somebody else will come and pay you. So there's no kind of unity and there's no kind of support, no? So that is what I feel that quite bad about the way it is conducted here. मुझे ऐसा लगता है. Absolutely. Jabhi, when we were working Kostov mein, tabhi we were discussing certain ideas, and what I liked about you is that whenever I was discussing any of the ideas, तभी आपने ऐसा बोला, यार सेजल हम लोग करते हैं ना क्या, नेक्स्ट फिल्म में एक छोटा फिल्म करते हैं 10-15 दिन ऐसा कि द स्मॉल टाउन में एंड ऑल.
So whenever I've discussed films with you, your ambitions have always not been, यार सेजल अभी next film में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 200 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की फिल्म करते हैं, हम लोग ये करते हैं. So that is what is very interesting, that you still gravitate towards, आपका ऐसा है कि you still gravitate towards interesting role, or it doesn't matter to you कि what are the kind of roles you gravitate towards or you want to do, or are you not getting it? एक्चुअली मैं जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस्ता भी है, मैं मुझे हमेशा ना उस तरह के, मुझे स्टोरी में आज तक भी अभी तक भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जागा जितना कैरेक्टर्स में होता है, कि किसी इंसान के दिमाग को एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. स्टोरी जैसे लोग बोलते हैं ना कि स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी तो कुछ भी नहीं होती. स्टोरी 4-5 ही हैं जो पूरी दुनिया में घूम रही हैं, है ना. यहाँ से वहाँ, यहाँ से बम्बई तक जाऊँ अगर मैं गाड़ी से, वो भी एक स्टोरी हो सकती है. आप सिर्फ बैठी हैं कोने में, वो भी एक स्टोरी हो सकती है. लेकिन तब हो सकती है कि खूबसूरत स्टोरी जब मैं आपके माइंड में जाऊँगा, आपके ब्रेन में जाके, कि आपकी क्या इनसिक्योरिटी है, क्यों ऐसा क्यों बातें ऐसी करती हैं, क्या सोचती हैं ये, वो हम एक्सप्लोर करने में अभी थोड़ा कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं. हमें फ्लैशी ये वो फाइटिंग जो बाहर की चीज़ें हैं, कि 10 लोग आएंगे उसको मारेंगे, वो शिप से उड़ जाएगा या जहाज से उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, जो सर्कस में होता है, शॉकिंग वैल्यू, शॉक देना कि ये अरे ये ओ माय गॉड इतना बड़ा, ओ माय गॉड. इट मीन्स अगर ये रहा तो ये तो फिल्म मेकिंग जो है बहुत बड़े पैसे वालों का गेम हो जाएगा. वो बहुत डेंजरस है, यू नो. फिल्म मेकिंग एक बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ है कि जिसमें आप एक इंसान को पिक करते हैं और उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, उसके अंदर उसकी डेप्थ क्या है, उसके अंदर जाते हैं, उसके दिमाग में जाते हैं कि क्या एक वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यू नो, क्या सोचता है ये इंसान, क्यों सोचता है, क्यों ऐसा है ये, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक सिनेमा के लिए. इट इज़ नॉट ओनली कि भाई एक इवेंट फिल्म बना रहे हैं टाइप में, और यार वो तो अमीर लोगों का जॉब हो जाएगा अदरवाइज. तो उसमें जो हमारी कंट्री में इतने सारा टैलेंट है वो तो आ ही नहीं पाएगा फिर, कि मैं एक 25 करोड़ का एक घोड़ा बना रहा हूँ और वो दौड़ता भी है, चढ़ भी जाता है, कहीं भी आता है और कुछ भी करता है टाइप में. और यार 25 करोड़ का घोड़ा, एक गन बनाऊंगा मैं, हैं, जो 100 करोड़ की गन होगी, लोग देख के अरे कितनी कमाल की गन है, और ठक 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 सबको मार दूंगा मैं. और ये क्या गन थी यार वो. और वो तो छोटा फिल्म मेकर तो बेचारे 100 करोड़ की गन बना 100 करोड़ की कहाँ से हमारे 20 करोड़ जुट जाए हमारी फिल्म के लिए, वो बहुत है. तो ये सिनेमा एस्केपिस्ट सिनेमा है ना. ये पैसे वालों का एक चोचला है कि देखो हम तुम्हें ऐसी गन दिखाएंगे या तुम्हें ऐसा शिप दिखाएंगे, ऐसा जहाज दिखाएंगे जो खरबों का है, जो गरीब फिल्म मेकर कभी कर ही नहीं सकता, इमेजिन ही नहीं कर सकता. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे कैरेक्टर हों जो हमारी कंट्री में है, जो रिलेट कर सके हम लोग, गली मोहल्लों के कैरेक्टर. क्योंकि कहते हैं ना, जितना लोकल होता है उतना ही ग्लोबल होता है. और बाहर भी उन्हीं फिल्मों को, हमारी इन फिल्मों को लाइक करते हैं जो शायद यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे यहाँ पे 4 दिन भी ना चले, 4 दिन के बाद उनको उतार दिया जाता है उन फिल्मों को. और वही फिल्म मेकर हमारी कंट्री का नाम बाहर रोशन कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं. ये भी बहुत छोटे से स्मॉल बजट की फिल्में हैं. अगर आपको दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो आपको हमारी छोटी छोटी फिल्में, लोकल फिल्में, है ना, मतलब लोकल सब्जेक्ट हों, लोकल एक्टर हों जो रिलेट करते हो. हाँ, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया, ये भारत है. भारतीयता होना बहुत ज़रूरी है फिल्म में, या गली मोहल्ले होना ज़रूरी है. And I also feel that, see, I don't, जो हम लोग films के बारे में we are saying good film, I don't necessarily mean that some films you don't, okay, of course some stories demand bigger budgets, ऐसा नहीं है, but it should be demand of the story. Like I'm saying that जैसे कि suppose you're making a next film and you know in this film also we spend money on locations and whatever action, like I'm doing a next film which could be a bigger film. But क्या होता है ना, that should decide, the story should decide the budget, not कि अब अपने को अभी हम लोग ऑडियंस को दिखाएंगे कि प्लेन कैसे उड़ता है, हम लोग ऑडियंस को दिखाएंगे. दैट दिस होल एटीट्यूड वेयर यू आर ट्राइंग टू शो टू द ऑडियंस, आई थिंक दैट आल्सो इज अ प्रॉब्लम, यू नो, कि हम लोग हमेशा प्रीच करते हैं. वी एक्चुअली द प्रॉब्लम, वी लुक डाउन ऑन द ऑडियंस मोर देन एनीथिंग, कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा. एक्चुअली ना मुझे तो ओपनहाइमर बनानी है, पर यू नो लोगों को समझ में नहीं आएगा, विच इज सो ट्रू, बिकॉज यू द ऑडियंस इज डेफिनेटली नॉट डम. They are very smart. That is why they are rejecting bad films, you know. So the whole attitude of looking down on the audience is something I find it very patronizing. You know, सब लोग बोलते रहते हैं कि मेरे को मैसेज देना है ऑडियंस को, नहीं तो मैं डम डाउन कर रहा हूँ कि ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी. क्यों नहीं समझ आएगी? Because they are very intelligent.
बिल्कुल। रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। आपने ज़्यादा तो मुझे प्रेज नहीं किया मगर ठीक है। एंड आई ट्राइड नॉर्मली, मेरा और नवाज का कॉन्वर्सेशन सेट पे ऐसा होता था कि इंग्लिश हिंदी का होता था, हाँ। बिकॉज आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू गिव स्पीक लाइक यू हिंदी, तो भी मज़ा आया।